Namaste to Guruji. Jai Guruji Auntie. Jai Guruji, Shilpi. Jai Guruji to Sangat. Shukrana to Guruji Maharaj. Thank you so much, Guruji, for this beautiful morning here in Seattle. Though it's cold, but it's bright and beautiful. And the best part is that we all are alive and breathing. And we realize we are here. We are in the present. So let's move on, getting our Guruji's blessings to each one of us. I wanted to wish you also, I hope everybody had a beautiful Lodi and Makar Sankranti. Makar Sankranti is the brilliance of the sun, the ojas, the brightness of the sun that just envelops us and illuminates our soul and mind and clears away all the darkness, all the cobwebs when it pierces through our being inside. That's the main significance of Makar Sankranti. And also Lodi. The fire symbolizes that whatever we have, like til, gur, peanuts, these are the crops that the farmers cultivate at this time. And what a beautiful way, with gratitude, we offer those, corn, everything, to the divine before we partake ourselves. इंडिया में बचपन में मुझे याद है जब माघ शुरू होता था, जो अभी शुरू हुआ है, that month was so powerful कि उससे पहले तिल जब उसकी, because we also come from a farming family, our grandparents taught us a lot of things about grain, how to respect food. और जब वो तिल या गुड़ जो भी उपज होती है, जो भी उस समय फार्मिंग में उस खेत से निकलता है, वो सबसे पहले अग्नि को आहुति देते हैं, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद ही तिल या गुड़ को ग्रहण किया जाता है. What a beautiful way. It teaches such intense knowledge that may have been forgotten now. लोहड़ी में अच्छे कपड़े पहन लो और डांस करो फायर के अराउंड, but we must make sure that we teach our younger generations what is the significance of Lodi, what is the significance of Makar Sankranti. Makar Sankranti हो या पिहू हो या सब जगह, all over India it is celebrated, because this is the beginning of when the sun changes its direction to Uttarayan, that is northern hemisphere. It changes that direction, and the day slowly becomes warmer and becomes longer. The cold nights of winters are past behind us, and all the hibernations during the winter, now slowly the body also gets rejuvenated with the movement of the sun, because we are part of all this. We are part of this universe. We cannot be alienated. We all belong together. All our festivals are around sun and moon, or water or fire, or sky or trees. All our gods have so many beautiful animals as their vehicles. So it shows that we all are together in it, and just feel the essence, feel the power of now, feel that energy today. मकर संक्रांति की कहीं कल मनाई गई है 14, कहीं आज मनाई जा रही है 15th को, but it's all the same.
And I must turn back to my book because there's so much to talk about this. Jai Guruji, let's move to a book. This book, slow, very, very beautiful, small little book. The Practicing the Power of Now by Eckhart Tolle. We are on chapter 5, page 57. So let's get together. Please put all your devices away. Try to be in the now, because as we are learning, not learning, we are practicing the power of now. What the writer wants us to practice with him. That either our mind goes in the backward mode or forward mode. We are never in the present moment. So let's be in the present moment and feel that just for a few moments, because this moment will be gone too soon. And then we'll realize, अरे क्या पढ़ा था, क्या सुना था, कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी. So let's move on. Chapter 5. Jai Guruji. Om Namah Shivaya. Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya. Guruji Sada Sahai. Jai Ganeshaya Namah. Beauty arises in the stillness of your presence. So beautiful. Presence is needed to become aware of the beauty, the majesty, the sacredness of nature. Have you ever gazed up into the infinity of space on a clear night, awestruck by the absolute stillness and inconceivable vastness of it? Have you listened, truly listened, to the sound of a mountain stream in the forest, or to the song of a blackbird at dusk on a quiet summer evening? To become aware of such things, the mind needs to be still. You have to put down for a moment your personal baggage of problems, of past and future, as well as all your knowledge otherwise. Otherwise, you will see but not see, hear but not hear. Your total presence is required. Beyond the beauty of the external forms, there's more here. Something that cannot be named, something ineffable, some deep inner holy essence. Whenever and wherever there is beauty, this inner essence shines through somehow. It only reveals itself to you when you are present. Could it be that this nameless essence and your presence are one and the same? Would it be there without your presence? Go deeply into it. Find out for yourself. What a powerful paragraph. So beautiful. And as we all know, that especially when we are around nature, have you ever gazed up into the infinity of space on a clear night? जब आसमान में आप देखो तारे अनगिनत, beautiful moon, the stillness, the vastness of time, ये सब चीजें we can only enjoy when we are at the present moment. क्योंकि हम देखते तो हैं पर वहां होते नहीं हैं, वहां पर मौजूद नहीं होते हैं. शरीर रहता है पर मन कहीं और फिरता रहता है. तो वो जो ब्यूटी जो नेचर आपको दे रही है, जो आपको ऑफर कर रही है, उसको हम ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, because we are not present at that time. We are either in the past or the future. तो वो कहते हैं
क्या आपने सुना, अगर आपको शाम को समर की इवनिंग में कोई ब्लैक बर्ड, कोई बर्ड ब्यूटीफुल शाम को जो अपने मधुर संगीत आपको सुनाना चाह रही है, सुना रही है, क्या आप सुन रहे हैं उसको? ये सब महसूस करने के लिए हमें अपने माइंड को एकदम शांत कर देना है। ओनली देन कैन वी बी प्रेजेंट। अगर आप परेशान होंगे, आपकी वरीज होंगी या आपका कुछ दुख दर्द होगा, तब आप उस क्षण में नहीं, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप जाएंगे तो देखेंगे, पर आप रियली देख नहीं रहे हैं, महसूस ही नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ। कुछ काफी वर्ष हो गए, एक हमारे कोई गेस्ट आए हुए थे इंडिया से। तो Seattle is so beautiful. It was a summer. Summer is so beautiful here. तो वहाँ उनको beautiful lakes and mountains. तो उसके पास, because we love nature. तो summer में तो I just stay outside in my backyard most of the time, enjoying the beautiful. The divine is giving us this beautiful, the sunshine, the flowers, the trees, the birds, the stillness. Just enjoying that. So उनको लेकर के गए, thinking that they would like it. And वो थोड़ी दूर था, तो वो वहां जाकर के कहते हैं, अरे ये खाली पानी देखने हम लोग इतने दूर से आए हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में तो कितनी नदियां हैं, क्या इतनी दूर तुम लोग लेके आए हो। तो we realize that everybody is different. किसी को नेचर अच्छा लगता है, किसी को just maybe, they want to sit down and talk. It depends. I mean, we are not judging anybody. Everybody is different. That's all. We have to accept that. So when you don't realize the beauty of nature, you're not there. You have to have that stillness of your mind. और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जब तक आप डीप इन अ होली एसेंस, जब आपके अंदर जो एक मैं कहूँगी एक तृप्ति है या शांति है या एक स्टिलनेस या जॉय है या ब्लिस या आनंद जिसको कहते हैं, जब आप आनंदित होते हैं तब आप एकदम शांत हो जाते हैं, आपकी सांसें एकदम डीप होने लगती हैं। फिर आप आंखें बंद करना चाहते हो क्योंकि आपके आंतरिक मन में शांति जो है, जो आप महसूस कर रहे हैं, आप उसमें खो जाना चाहते हो। So that is the real essence, because this inner essence shines through and it tells you that you are in the present moment. आप उस क्षण को आनंद महसूस कर रहे हो, आनंद में हो रहे हो। Realizing pure consciousness. Whenever you watch the mind, you withdraw consciousness from mind forms, which then becomes what we call the watcher or the witness. जब हम अपने दिमाग से, जब हम अपने दिमाग को देखते हैं और फिर उससे सीखते हैं कॉन्शियसनेस, जब हम बिल्कुल सचेत हो जाते हैं, फिर हम देखते हैं लाइक अ वॉचर और द विटनेस। केवल हम उसको दृष्टा की नजर से देखते हैं। Consequently, the watcher, the pure consciousness beyond form, becomes stronger and the mental formations become weaker. जो हमारे मन के ख्यालात हैं वो उनकी शक्ति हीन होने लगती है, और वो जो स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस है जिसमें हम रहना चाहते हैं सचेत, उसको हम बल देते हैं। When we talk about watching the mind, we are personalizing an event that is truly of cosmic significance
Through you, consciousness is awakening out of its dream of identification with form and withdrawing from form. This foreshadows, but is already part of, an event that is probably still in the distant future as far as chronological time is concerned. The event is called the end of the world. To stay present in everyday life, it helps to be deeply rooted within yourself. Otherwise, the mind, which has incredible momentum, will drag you along like a wild river. ये बहुत ही powerful paragraph है. I'll read it again. To stay present in everyday life. हमारी रोज की दिनचर्या या रोज की जो हमारी ये हमारा ये जीवन है, उसमें उसको महसूस करिए. It helps to be deeply rooted within yourself. अगर आप आंतरिक मन में उसमें स्थित हैं, तब आप ठीक रहेंगे. अदरवाइज द माइंड, जो हमारा मन है, which has incredible momentum, जो बहुत तेजी से दौड़ता है, will drag you along like a wild river. वो तो एक जैसे तूफान की तरह, एक जो नदी जब एकदम परेशान होती है तो क्या होता है, वो सब कुछ तहस नहस कर देती है. वो शांत भी रहती है, पर जब उसमें इतनी तरंगे आती हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती. उसी तरह हमारा ये दिमाग है, माइंड है, जिसको अगर हम ध्यान कॉन्शियसनेस में ना रखें या उसकी तरफ हम ध्यान ही ना दें, तो वो तो एक तूफान की तरह कहाँ कहाँ चली जाएगी. कितने कितने ख्याल आते आते कहाँ कहाँ क्या क्या हो जाता है. ये माइंड ही सब कुछ कराता है. तो उस पर हम सचेत रहें. It means to inhabit your body fully, to always have some of your attention in the inner energy field of your body, to feel the body from within, so to speak. Body awareness keeps you present. It anchors you in the now. तो यही वो कह रहे हैं, किस तरह से आप अपनी जो इनर एनर्जी ऑफ द बॉडी है उसको महसूस करिए. देखिए, हमारे सब के अंदर जो एक तरंग है, एक लहर है, एक ऊर्जा है, उसको महसूस करिए अपने शरीर में, आंतरिक अंदर से. और जब आप उसको महसूस करेंगे तब आप उसी क्षण में रहेंगे और वहीं से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं द पावर ऑफ नाउ. जब आप उसको, उसके दृष्टा बने, उसको महसूस करें. कई बार हम अपनी सारी जिंदगी यूं ही बिता देते हैं और कभी अपने आप को महसूस ही नहीं करते, या अपने आप से अकेले में बात ही नहीं करते, या कभी शांत ही नहीं होते, साइलेंस में ही नहीं बैठते, या अपनी सांसों को कभी महसूस ही नहीं करते. बस सोचते हैं बस यूं ही आ जा रही है. कभी सोचा ही नहीं कि अगर ये सांस नहीं होगी तो क्या होगा. उस पर ध्यान ही नहीं दिया. ये बॉडी को भी बस यूं ही we took it for granted. क्या आपने आपने अपने बॉडी से बात करी है कभी? कभी आपने अपने बॉडी को महसूस किया है? अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो उस पार्ट से आपने बात किया है? जब आपका कोई मित्र बीमार होता है तो हम जाते हैं और उससे बातें करते हैं, उसको सुकून मिलता है. ये बॉडी भी रिएक्ट करती है आपके ध्वनि से, आपके प्रेम से. आप जब अपनी बॉडी, जो अगर आपके जहां भी दर्द है, पैरों में, हाथों में, कंधों में, नेक में, जो हमेशा पेन रहता है कहीं ना कहीं, स्पेशली फॉर लेडीज जो इतना काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, खाना पीना, घर की व्यवस्था रखती हैं, घर में शांति और सुख देती हैं सबको.
तो वो अपने आप को भूल जाती हैं। रात में सोती हैं, सुबह उठती हैं, फिर वही दिनचर्या। तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है, कुछ पल अपने लिए निकालिए, चुपचाप बैठिए शांति से। इसीलिए पुराने टाइम से ही ये पूजा पाठ का अवसर मिलता है स्त्रियों को, जो चुपचाप बैठ के शक्ति अपनी रेजुविनेट करती हैं। वो डिवाइन शक्ति प्रेयर से, दिया जला करके, फूल ऑफर करके, वो कुछ पल चुपचाप जब बैठती हैं, वहीं से उनको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वो उस समय उसी क्षण में रहती हैं, उसी पल में रहती हैं। So it is very, very important to understand this concept. We must realize who we are, why we are on this earth. We don't want to just lead our life every day, get up, do your stuff, go to work, do this, do that, and go back to sleep. ये सुनहरा जीवन जो मिला है 2024 में, ये हमें प्रैक्टिस करना है द पावर ऑफ नाउ, और ये सोचना है कि क्या हमने गलतियां करी हैं, वो अपने प्रति, अपने को सुधारना है, किसी और को नहीं। जब अपने प्रति हम जागरूक होते हैं, उसी समय हम जीते हैं, उसी समय बदलाव आता है। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं, टू फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, सो टू स्पीक, बॉडी अवेयरनेस कीप्स यू प्रेजेंट, इट एंकर्स यू। वो आपको ले जाता है नाव में, इस समय में, वर्तमान की तरफ ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। The body that you can see and touch cannot take you into the being, but that invisible and tangible body is only an outer shell, or rather limited and distorted perception of a deeper reality. In your natural state of connectedness with being, this deeper reality can be felt every moment as the invisible inner body, the animating presence within you. So to inhabit the body is to feel the body from within, to feel the life inside the body, and thereby come to know that you are beyond the outer form. तो ये जो बॉडी है तो आउटर शेल है ना हमारा, ये तो कवरिंग है। अंदर क्या है? वो हमारी आत्मा है, हमारी बीइंग है, वो हमारा सोल है, जो सब कुछ महसूस करता है। ये बॉडी तो जो हम सोचते हैं उस प्रकार हम उसको यूज करते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप जाएंगे, कुछ खाना बनाएंगे, कुछ खाएंगे, पर ये जो आंतरिक, जो विद इन, जो बॉडी के अंदर जो है, that is beyond the outer form, that is completely different than this body. It is just an outer shell जो इस घर में है, घर का सोल जो है, जो घर का एक कहते हैं एक कोण होता है, ईशान कोण, वो वैसा वो हमारी आत्मा है, सोल है। You're cut off from being as long as your mind takes up all your attention. जब हम अपने माइंड को ही अटेंशन देते हैं तो हम वो उस आत्मा से दूर होने लगते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड को ही सब कुछ सोच लेते हैं। When this happens, and it happens continuously for most people, you're not in your body. The mind absorbs all your consciousness and transforms it into mind stuff. You cannot stop thinking. फिर वो माइंड ओवरटेक कर लेता है आपकी बॉडी, फिर आप केवल बस ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उसी विचारों में खोए रहते हैं। To become conscious of being, you need to reclaim consciousness from the body, from the mind. This is one of the most essential tasks on your spiritual journey. You will free vast amounts of consciousness that previously had been trapped in useless and compulsive thinking. तो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा ये पैराग्राफ खत्म करके। A very effective way of doing this is simply to take the focus of your attention away from thinking and direct it into the body, where being can be felt
in the first instance as the invisible energy field that gives life to what you perceive as the physical body. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं एकर्ट टोल। सो ये जो हमारा माइंड है ये ओवर थिंक करता रहता है और उसी को हम ज्यादा शय देते हैं तो वो और सोच में डाल देता है और उसके बाद क्या होता है सारा अटेंशन वो हमारा उस दिमाग में ही चला जाता है और जो हमारा ये हमारा जो शरीर है जहाँ से ये सारी एनर्जी है invisible energy field that gives life to what you perceive as this physical body, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो आंतरिक जो सोल है आत्मा है उससे हम दूर होते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं कनेक्टिंग विद द इनर बॉडी, उससे कैसे जुड़े हम। प्लीज ट्राई इट नाउ। यू मे फाइंड इट हेल्पफुल to close your eyes for your practice. Later on, when being in the body has become natural and easy, this will no longer be necessary. Direct your attention into the body. Feel it from within. Is it alive? Is there life in your hands, arms, legs, and feet? In your abdomen, your chest? Can you feel the subtle energy field that pervades the entire body and gives vibrant life to every organ and every cell? Can you feel it simultaneously in all parts of the body as a single field of energy? Keep focusing on the feeling of your inner body for a few moments. Do not start to think about it. Feel it. The more attention you give it, the clearer and stronger this feeling will become. It will feel as if every cell is becoming more alive. And if you have a strong visual sense, you may get an image of your body becoming luminous, shining. Although such an image can help you temporarily pay more attention to the feeling than to any image that may arise. An image, no matter how beautiful or powerful, is already defined in form. So, there is less scope for penetrating more deeply. तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेके इसको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा किस तरह से हम अपनी बॉडी को समझे नहीं पाते हैं और वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बस हम दूसरों से जुड़ते रहते हैं पर क्या अपने आप से जुड़े हैं कभी? जैसे यहाँ पे वो कहते हैं कि डायरेक्ट योर अटेंशन इनटू द बॉडी। आप अपने बॉडी को देखिए, सोचिए, फील इट फ्रॉम विद इन। आप में जो शक्ति है, जो आपके हाथ पैर, आप उसमें जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी को आप दे सकते हैं, एवरी सेल एंड ऑर्गन। और जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके फील योर बॉडी। If you have few moments, you should early in the morning or late at night before you sleep. Even in your bed, if you want to lie down quietly, maybe listen to this beautiful flute music or any instrument music. I believe when you meditate, the instrument music, for me, the flute music, or the chirping of the birds and the flow of the river, this really takes me deep within. And then you focus all your attention
starting from your feet. Tingle your feet. Feel the presence of your feet, your whole legs, your abdomen, where all the organs are there. Your kidneys, your liver, your pancreas, your intestines. वहीं से इससे पाचन शक्ति, जो जट अग्नि है, जहां पे सारा आपका भोजन, वहीं से सब कुछ वो सारे बॉडी पार्ट में जाता है। उसको कभी महसूस किया है? आपके शरीर में भी एक अग्नि है, जो एक सिस्टम है, एक इनर इंजीनियरिंग है जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने। ये सारी चीजें कभी महसूस करी हैं? फिर उसके पास अपने हृदय में जाइए, जहाँ पे लंग्स है, जहाँ आपका हार्ट है, जहाँ खून का संचालन होता है, जहाँ आपकी आर्टरीज हैं। कभी उनसे बात करिए, उनको फील करा है, अपनी सांसों को फील करा है, लंग्स में हर प्रतिदिन किस तरह से ये सांसें आती जाती हैं। हम ऑक्सीजन सांसों में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ऊर्जा लेते हैं और तनाव बाहर छोड़ते हैं। कभी महसूस किया है? फिर आपकी गर्दन में इतने हार्मोन्स, आपके थायराइड, पैराथायराइड, आपकी फूड पाइप, आपकी ब्रीदिंग पाइप, कितना सुंदर डिजाइन बनाया है भगवान ने, ईश्वर ने। खाना जब खाते हैं मुंह से, तो फूड पाइप पे जाता है। सांस लेते हैं, उसके लिए एयर पाइप है। इतना सुंदर सारी व्यवस्था बनाई है ईश्वर ने। कभी उस पर हम लोगों ने दृष्टि डाली है? फिर अपने मुंह की तरफ जाइए, कितना सुंदर बनाया है उस ईश्वर ने। खाने के लिए दांत दिए हैं, चबाने के लिए। जीभ से हम सारे जितने भी स्वाद हैं सब महसूस करते हैं। स्वर है, हम बोल सकते हैं, अच्छे बुरे दोनों, ये चॉइस है हमारी। नाक से जो हम सांसें लेते हैं, वो छोटे छोटे छिद्र जो हैं, जो बाल हैं, वो फिल्टर करते हैं जितनी गंदगी, इम्प्योर एयर को फिल्टर करके फिर वो सांस जाती है। या बॉडी में कुछ कोल्ड कॉफ है तो वो एक्सपेल करती है नाक के थ्रू। सारा इंजीनियरिंग ब्यूटीफुल तरह से बनाई गई है। फिर आंखें हैं तो सब कुछ है, आप देख सकते हैं। और फिर हमारा मस्तिष्क, दिमाग, जिसके जिसको हम अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, या वो हमें गलत रास्ते पे ले जा सकता है। ये चॉइस है हमारी। और ये सारी जगह एक चक्र है, कितने चक्र हैं, शक्ति के स्थल हैं हमारी बॉडी में, जहां हम जब ध्यान में बैठते हैं तो किस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी से किस तरह से वो चक्र भेद करते हुए ध्यान में ऊपर सहस्त्रधारा, यहाँ पर सर के ऊपर कुंडलिनी, ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। कभी हमने महसूस किया है उसको? तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अपने बॉडी को महसूस करिए। कितना अच्छा हाथ बनाया, फिंगर्स बनाए जिससे हम पकड़ सकते हैं, इन हाथों से काम कर सकते हैं, इन पैरों से चल सकते हैं, जा सकते हैं। We just take granted of everything. We don't realize it. Woman's body is beautiful. How we conceive and give birth, keep the child embryo in our stomach for 9 months. This is the beautiful engineering of God. How the baby is born and how we get back to our normal self. So ये सारी चीजें महसूस कीजिए. That's what they are saying, that be in the power of now. Practice this. कि क्या है ये बॉडी, एंड बॉडी के अंदर जो आत्मा है उसको महसूस करिए.
एक स्टिलनेस महसूस करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जय गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। गोइंग डीपली इनटू द बॉडी, टू गो इवन मोर डीपली इनटू द बॉडी, ट्राई द फॉलोइंग मेडिटेशन, जो मैं कहती हूँ हमेशा से। ध्यान, ध्यान इज द फूड फॉर अ सोल। आप देखेंगे जब आप ध्यान करते हैं, आपके पूरे एक एक सेल आपका रिजेवनेट हो जाता है, ऊर्जा उसमें चली जाती है, आपकी थकान चली जाती है, आपको चीजें जो पहले समझ में नहीं आती थी वो समझ में आने लगती हैं, आपको सबसे प्रेम होने लगता है, सारे अपने दिखने लगते हैं, चेहरे पर हंसी रहती है, चेहरे पर मुस्कान रहता है, चेहरे पर ओजस, तेज सब कुछ होता है। वो केवल ध्यान से ही आता है। आप अक्सर देखेंगे जो इतनी भीड़ में जो ध्यान करता है वो अलग ही उसका चेहरा चमकेगा और वो शांत रहेगा और स्माइल करते हुए सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि वो ओजस से वो ऑरा उसने क्रिएट किया है। डिवाइन हेल्प करता है उनको, जो वो ध्यान में बैठते हैं उनसे जुड़ते हैं ईश्वर से, बिकॉज जो ध्यान में बैठते हैं वो ईश्वर के लिए ध्यान करते हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं। टू गो इवन मोर डीपली इनटू द बॉडी, ट्राई द फॉलोइंग मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन ट्राई करिए। वो कह रहे हैं 10 to 15 minutes ऑफ क्लॉक टाइम शुड बी सफिशिएंट। मैं तो अक्सर कहती हूँ 10-15 मिनट भी अगर आप बैठ जाएं, आप देखिएगा आपका सारा दिन कितना डिफरेंट बीतता है। प्रैक्टिस इट योरसेल्फ, बिकॉज दिस वी ओ टू आवरसेल्फ, नॉट टू एनीबॉडी। आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। जो आदमी ध्यान करता है वो, अगर वो 4 घंटे का काम है तो वो 1 घंटे में तुरंत कर देगा। वो ऊर्जा रहती है, वो दिमाग में सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, उसमें ऑक्सीजन, उसमें जो फूड जो डिवाइन के थ्रू जो ध्यान में मिलता है, वो खाने से हम उसको नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। कि आप सोचिए, आप ऑर्गेनिक खा लेंगे, आपका शरीर मस्तिष्क में एनर्जी होगी, ध्यान के बराबर कुछ भी नहीं है। जो 4 घंटे में बगैर ध्यान वाले जो करेंगे वो 4 घंटे में करेंगे, जो ध्यान में बैठते हैं वो बहुत जल्दी उसको कर लेंगे काम। आपको सोने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, आपको आलस से नहीं आता है, आपके पैरों में स्प्रिंग की तरह एनर्जी रहती है दिन भर। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फूड। फूड से तो आलस से होता है। आप ग्रेन खाएंगे आपको नींद आएगी। ट्राई टू ईट मोर फ्रूट एंड सैलेड एंड वेजिटेबल और सूपी थिंग्स, you'll see the difference in your life. तो ये सारी चीजें वो यही कह रहे हैं। ट्राई टू गिव 10 to 15 minutes ऑफ क्लॉक टाइम फॉर मेडिटेशन। मेक श्योर फर्स्ट दैट देयर आर नो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि यही हिंड्रेंस है। आजकल ये डिस्ट्रैक्शन है, ये डिवाइसेस, ये हमें चैन से जीने नहीं दे रही है। सोते सोते भी हम अपने सर सिरहाने रखते हैं, उठ उठ के चेक करते रहते हैं, या हम कभी किसी के साथ उस पल ही में नहीं रहते हैं। अगर फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ बैठते हैं, अपने फोन को देखते रहते हैं, बातें कर रहे हैं, बस सुनते नहीं हैं वहां पर मौजूद नहीं रहते, उस पल में नहीं रहते। तो ये आजकल दुनिया इतनी प्रगति पर है, पर कुछ चीजें हम उसको खो भी रहे हैं उसके साथ साथ। अगर हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं, अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, इट विल टेक ओवर योर होल बीइंग, योर लाइफ। मैं तो अक्सर जोक करती हूँ कि एक वो पल भी आएगा जब कोई बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको एक डिवाइस, उसके चिप उसके बॉडी में रहेगी। छोटे छोटे बच्चे आजकल फोन लेकर के, खाने की टेबल पे बच्चा नहीं खा रहा है, माँ उसको फोन दे देती है। सो ये बहुत ही आवश्यक है उसको समझना। Make sure there are no external distractions such as telephones or people who are likely to interrupt you. लोग भी आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको कहेंगे ये तुम्हारी उम्र थोड़ी ना ये सब करने की,
अरे तुम तो यंग हो, अभी ये करोगे तो बुढ़ापे में क्या करोगे? ये सब बुढ़ापे की बात नहीं है। आपको ऊर्जा शक्ति आपको यंग एज में चाहिए। आपको हर घर में बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। उनका उनका जीवन बनाने के लिए हर माँ की ये ड्यूटी है, उनको सही रास्ता दिखाना। उनको ये नहीं कि उनको दवाइयाँ देना, उसका टेंशन डेफिशिएंट है, उसका ये डेफिशिएंट है। अगर आप उसको बचपन से सिखाएंगे, 2 पल स्थिर रहना, चुप रहना, शांत रहना, आप देखेंगे उसका मस्तिष्क अपने आप स्ट्रांग होने लगेगा। दीज आर सिंपल सिंपल जो हमारे भारतवर्ष में ये सिखाया गया है। गुरुकुल में क्या सिखाते थे? सबसे पहले स्रोत सिखाते थे। हर चीज की वंदना करते हैं, बुक्स को प्रे करते हैं, सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, ज्ञान के लिए हम प्रे करते हैं, फिर शरीर के लिए, फिर सूर्य देव के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र क्या है? हमारे मस्तिष्क को उज्जवल बनाइए। ये हमारे भारतवर्ष की देन है जो हमें फिर से हर घर में इसको लाना है। और हर घर में डिफरेंस देखेंगे कि कितने स्मार्ट ये सारे बच्चे हो जाते हैं। Make sure first there are no external distractions such as telephones or people who are likely to interrupt you. Sit on a chair, but don't lean back. Keep the spine erect. Doing so will help you to stay alert. Alternatively, choose your own favorite position for meditation. Make sure the body is relaxed. Close your eyes. Take a few deep breaths. Feel yourself breathing into the lower abdomen as it were. Observe how it expands and contracts slightly with each and out breath. Then become aware of the entire inner energy of the field of the body. Don't think about it, feel it. By doing this, you reclaim consciousness from the mind. If you find it helpful, use the light visualization I just described. When you can feel the inner body clearly as a single field of energy, let go, if possible, of any visual image and focus exclusively on the feeling. If you can, also drop any mental image you may still have of the physical body. All that is left then is an all-encompassing sense of presence or beingness, and the inner body is felt to be without a boundary. So यहाँ पे this is self explanatory किस तरह से हमें ध्यान में बैठना है। अगर आप जमीन पर पालथी मारकर सुख आसन में नहीं बैठ सकते, वैसे तो मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस करें तो हर कोई बैठ सकता है। थोड़ा सा हमें लाइट एक्सरसाइजेस की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे शुरू में दर्द तो होगा, थोड़ा पिलो का सहारा रख लीजिए, पीछे रख लीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे सुखासन में बैठने की कोशिश करें। अगर ना बैठ पाए, आपकी नी में प्रॉब्लम है, तो आप चेयर में बैठ सकते हैं जैसा कह रहे हैं। और पर उसको बस ऐसे बैठने के लिए रखिए, उस पर आप स्लाउच नहीं करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम इरेक्ट होनी चाहिए और आपको अलर्ट रहना होगा। पर जो आपको सही लगता है आपकी बॉडी के लिए, उस पोजीशन में आप बैठिए, चाहे आप जिस तरह से बैठिए। मेन है मेडिटेशन में बैठना, दैट इज आवर एम। और आपकी पीठ एकदम इरेक्ट रहनी चाहिए, स्लाउच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है वो उसी से आपकी रीढ़ की हड्डी से ही ऊपर जाती है, वो ध्यान में ही होता है, इसीलिए वो बहुत ही आवश्यक है। और फिर उसके बाद आप एकदम बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। और आंखों से सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आंखें बंद कर लीजिए और फिर धीरे धीरे सांसों को महसूस कीजिए। टेक डीप ब्रेथ्स, फील योरसेल्फ ब्रीदिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमेन। जब आप पेट से नीचे के पेट के भाग से आप सांस लेते हैं, और जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि आप ट्राई करिए 6 या 8 के काउंट में
start taking deep breath. And then hold your breath for the count of 4. Then you release the breath even longer to 12 counts. Slowly आप धीरे धीरे आप लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, यू टेक आउट कार्बन मोनोऑक्साइड। आप ऊर्जा लेते हैं और तनाव को हटाते हैं अपनी बॉडी से। तभी आपको एकदम बॉडी ढीली लगती है, एकदम यू बिकम सो क्वाइट, यू बिकम सो साइलेंट फ्रॉम द दिन। जैसे एक बच्चे को नहला करके आप लेकर के आओ तो उसको नींद से आने लगती है, क्योंकि वो रिलैक्स्ड रहता है। उसी प्रकार ये बॉडी भी, उसी प्रकार ये ब्रीदिंग से ही रिलैक्स हम कर सकते हैं। हमें कुछ भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसको आप अवेयर होइए अपने इनर एनर्जी ऑफ द फील्ड, पूरे बॉडी को आप रियलाइज करिए। अगर हो सके, अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए कुछ लाइट का, देन इट इज up to each one of us, whatever works for you. Or you can just close your eyes and just be with yourself. Just observe your breath, taking deep breath. Feel your breath, be with your breathing. That is the best way of meditation. So ये देखिए, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि until you meditate you cannot be in the now, because meditations जब आप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, the practicing the power of now. You are in the present moment. So this is what he's trying to tell us. आगे बढ़ते हैं। Having access to that formless realm is truly liberating. It frees you from bondage to form and identification with form. क्योंकि अक्सर जब हम फॉर्म में इमेजिन करते हैं तो उसमें हम थोड़ा फंस से जाते हैं, पर फॉर्मलेस में जब जाते हैं, विदाउट एनी फॉर्म, तो दैट इज ट्रूली लिबरेटिंग। आप उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। It frees you from bondage to form and identification with form. We may call it the unmanifested, the invisible, source of all things, the being within all beings. It is a realm of deep stillness and peace, but also joy and intense aliveness. जो मैंने कहा आंतरिक जो सुख है, जो ब्लिस है, वो केवल ध्यान में आपको मिलेगा। जब आप डीप स्टिलनेस, जब आप एकदम शांत होकर के बैठते हैं, whenever you are present, you become transparent to some extent to the light, the pure consciousness that emanates from this source. You also realize that the light is not separate from who you are, but constitutes your very essence. We all have our own light within ourselves. एक ज्योति जो है ना, वो हमेशा जलती रहती है। वो हमारी आत्मा की ज्योति है। कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। उसी प्रकार जब हम उस लाइट पर ध्यान देते हैं तो वो पूरे शरीर में चली जाती है, और उससे हम अलग नहीं हैं, उसी से ही हैं। When your consciousness is directed outward, mind and world arise. क्योंकि जब हम अपने अंतर मन में जाते हैं, तब हम ये सारी चीजें महसूस करते हैं। सुख, शांति, जो ब्लिस है, जो आनंद है, जो ज्योति है, उससे हम कनेक्टेड होते हैं अपने आप ध्यान में। और जब हम अपनी ये कॉन्शियसनेस, जब हम अपने चित्त को बाहर ले जाते हैं, तब फिर वो माइंड, दिमाग से फिर वो वर्ल्डली थिंग्स में हम जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। When it is directed inward, it realizes its own source. जब हम अपने अंदर की तरफ जाते हैं तो वो लाइफ सोर्स क्या है, वो आत्मा क्या है, कहाँ से हमें एनर्जी आ रही है, और returns home into the unmanifested.
Then when your consciousness comes back to the manifested world, you reassume the form identity that you temporarily relinquished. You have a name, a past, a life situation, a future. But in one essential respect, you are not the same person you were before. You will have glimpse of reality within yourself that is not of this world, although it isn't separate from it. Just it isn't separate from it. Now, let your spiritual practice be this. As you go about your life, don't give 100% of your attention to the external world and to your mind. Keep some within. तो अक्सर क्या होता है कि हम जब अपने सोर्स से जुड़ते हैं, अपने आंतरिक मन से, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तब वो सुख का पुंज होता है। और फिर उसके बाद जब हम ये बाहरी दुनिया से अपने दिमाग से जुड़ते हैं, तब वो सारी चीजों से हम जुड़ते हैं और फिर वो अपनी आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो ये रियलाइज करना है कि क्या हमें सुख देता है, क्या बाहरी चीजों से सुख मिलता है, क्या हमारे सुख हमारे अंतर मन में है, ये हमें रियलाइज करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, as you go about your life, don't give 100% of your attention to the external world and to your mind. Keep some within. Feel the inner body even when engaged in everyday activities, especially when engaged in relationships or when you are relating with nature. Feel the stillness deep inside it. Keep the portal open. It is quite possible to be conscious of the unmanifested throughout your life. You feel it as a deep sense of peace somewhere in the background, a stillness that never leaves you. No matter what happens out here, you become a bridge between the unmanifested and the manifested, between God and the world. This is the state of connectedness with the source that we call enlightenment. It is so beautiful. I hope it is very clear to you also. So यहाँ पर एक चीज समझनी है कि देखिए, हम दिन भर तो ध्यान नहीं कर सकते, या दिन भर तो अपने आंतरिक उसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम इस दुनियादारी में आए हैं, इस धरती पे आए हैं। तो हमें काम काज भी करना है, हमने काम में भी जाना है, हमें अपने बिजनेस भी संभालना है, या हमें अपने ये सारे जो रिलेशंस है इनको भी निभाना है। तो फिर क्या होता है, हम वो माइंड से काम करने लगते हैं, और फिर उसके बाद जब आपको समय मिलता है, दुनियादारी निभा के काम काज करके, जब आप चुपचाप फिर आप एकदम स्टिल होके बैठते हैं अपने आप में, तो क्या होता है, आपको आंतरिक सुख, आंतरिक एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है। तो इट्स लाइक अ फूड फॉर योर सेल्फ, योर बॉडी, योर सोल, एवरीथिंग। इवन योर माइंड रिलैक्सेस। जो हमेशा चाटा करता है, घूमता रहता है, सोचता रहता है, उसको भी हम शांत कर सकते हैं। इस क्रिया को ध्यान कहते हैं। जब हमारा मन, तन और जो आत्मा है, सारा एक लाइन में जो आ जाता है ध्यान में, शांति में, उसी को ध्यान करते कहते हैं। एंड दैट इज द ओनली रेस्ट, real rest we get at that time, deep rest. And that is the time when each cell of our body rejuvenates. दोबारा उसमें एनर्जी डालते हैं हम, जो उसका संचालन अच्छी तरह से हो सके, हम फिर बाहरी दुनिया में जाके अच्छी तरह से काम कर सकें। नहीं तो वो झुंझलाहट, वो गुस्सा, वो जेलसी, वो ये क्रोध आना, वो सब चीजें होती रहती हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे, आप देखेंगे अपने को सजग करके कि सब कुछ जो शांति है वो यही है। एंड देन यू रियलाइज, you rationalize, you internalize
that we are going to use this power for a maximum benefit. We want to change our life for betterment. जो कल गलतियां करी थी वो आज नहीं करूंगी. That's like a seek. उसको सोच करके देख करके फिर आगे बढ़ें. Make a better tomorrow. कल जो गलती करी थी उससे सीख करके हम आज अच्छा करेंगे, या कल जब जाएंगे तो और अच्छा करेंगे. तो ये सजगता होनी चाहिए, यही वो बता रहे हैं. और जब ये सजगता होती है तो क्या है? दिस इज द स्टेट ऑफ कनेक्टेडनेस विद द सोर्स दैट वी कॉल एनलाइटनमेंट. यही एनलाइटनमेंट है जब हमें ये समझ आती है कि हमें बैलेंस करना है आउटवर्ड लाइफ, वर्क लाइफ, और फिर we have to come back to ourselves, to our source, which is our being. That gives us the inner happiness. We have to come back to ourselves. That is a fountain of bliss. बाहर से नहीं मिलती है, अंदर से ही मिलती है. So this is what he's trying to tell. And I think by this, I would like to just close the reading for today, because अभी आगे इस चैप्टर में भी कुछ पेजेस बाकी हैं which we will finish tomorrow. And this is something to be practiced, not just by listening, not just by reading. You have to feel it within yourself. Try to do it, practice this as it is written in the book. Thank you so much. It is a beautiful, beautiful chapter which will be continued tomorrow. We finish page 64 almost. We are at the end. We'll start tomorrow again, continue this, and please practice whatever works for you, whichever way you can do dhyan or meditation. That is the only source of happiness. That is the only source of change. And this life that has been given, this divine life to us, this divine body, this divine soul, we owe this to our Maker to make it better than how we received it from Him. Because everything we have is because of the divine. Jai Guruji, thank you so much for connecting, for being with me. I hope it makes a difference in your life. Jai Guruji, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Jai Guruji.